अक्सर मेरे पास कई नौजवान आते हैं कि सर मुझे भारतीय सेना में नौकरी चाहिए। मैं उन्हें यही बोलता हूं कि भारतीय सेना नौकरी का साधन नहीं है। नौकरी लेनी है तो रेलवेज में जाइए, पीएनटी में जाइए और बहुत से जरिए हैं। अपना ओन बिजनेस खोल लीजिए। Today we will talk about the Agnipath recruitment scheme, previously known as Story Duty. The Agnipath recruitment scheme is transformer, revolutionary that will to provide youth profile to the armed forces. The step has been accepted after lengthy discussion with the armed forces. The aim is to recruit young talent from the society over more in tune contemporary technological trends and fellow skilled, disciplined, and moreover manpower into the society. The average age profile in the Indian Armed Forces which came down about the 5 to 6 years. After the implementation of the scheme, current average age is around 32 years. Agnipath is a recruitment scheme for the Indian youth to join the armed forces. Selected youth will be known as Agniveers. The recruitment model is based in all India merit-based selection process. The armed forces are looking at the best to serve the armed force between the age of 17.5 to 21 years. Once selected Agniveers to serve 4 years in the Indian Armed Forces, during these 4 years, the recruits would be trained by the armed forces in the skills required. In 4 सालों की सर्विस के बाद, the Agniveers will get an opportunity to apply and voluntarily for the regular cadre. In merit के based पर an organization of recruitment up to 25% will be selected for the next 15 more years. A roster assistant system is being developed which would be transparent, objective, automated, and centrally maintained. The other 75% Agniveers will be team mobilized with the Sevanidhi packages. We all know in future, whereas technology will play a significant role in the war. Fresh recruits can adopt new technology easily as compared to existing warriors, with help about the mission artificial intelligence and it maintained reality. Agniveers can be trained efficiently within a short period of time. I hope you understand the scheme will not affect the operational preparedness of the Indian Armed Forces. This scheme is not only aimed at introducing pension and salary expenditure, which is more than 50% of the total defense budget. This scheme will turn the Indian Armed Forces intertext to be armed forces. Agniveers will be given an attractive customized monthly package along with the risk and hardship allowances. Under the Sevanidhi package, soldiers will get annually package of 4.76 lakh Indian rupees in the first year and 6.92 lakh in the fourth year. On the completion of 4 years of service, the Agniveer will receive around 11.71 lakh Indian rupees including contribution and interest. Agniveer will contribute 30% monthly emoluments and a matching amount will be maintained by the government. It will be exempt from income tax from Supreme Sacrifice. The financial package for the soldiers under Agnipath include non-contributory life insurance, cover up 48 lakhs current additional currency, rupees 44 lakh for the death attribute to service, and payment for the entire portion up to 4 years, including the Sevanidhi package. In case an Agniveer get disabled during the service, there will be full payment for the unserved portion for Sevanidhi package with full interest. Besides this, the scheme has provision for 44 lakh based on percentage of disability. हमारे यहाँ पैसा नहीं है, इसीलिए अग्निवीर योजना है और कोई रीजन नहीं है। केवल पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास कि उनको पेंशन दिया जा सके, इसलिए सारा बात घुमा फिरा के यही किया जा रहा है। समझ आ गया कि नहीं? जैसे आपके पास पैसा नहीं है, किसी के ब्याह में जाना है तो कह देते एग्जाम पढ़ल है बेटा, कहाँ जाएंगे? यहाँ जानते हैं ब्याह में जाएंगे तो न्योता होता देना पड़ेगा, कपड़ा उपड़ा कुछ देना पड़ेगा। तो सारा रीजन यही है, पैसे नहीं है गवर्नमेंट। तो पैसा के पे ना सोचिएगा। हाँ, मान के चलिए हमारे पास पैसा नहीं तो सोचेंगे ना पैसा आना चाहिए कि निकलना ही छोड़ देंगे घर से।
अग्निवीर सरकार का एक ऐसा योजना जिसके तहत इस देश के युवाओं का भविष्य आग के हवाले करने का प्रयास किया जा रहा है कि ये अस्थायी सेवा है, केवल 4 साल के लिए है, फिर आप वापस घर आ जाओगे। और दूसरा ये है कि जब आप वापस घर आ जाओगे तो आपके पास सीमित विकल्प रह जाएंगे और फिर से रोजगार की समस्या हो जाएगी। तीसरा, कौशल की कमी। पहले जहाँ जवानों को ट्रेनिंग मिलती थी 1 से 1.5 साल की, अब दी जा रही है 6 महीने की, तो इसका फर्क तो देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। सबसे बड़ा तो है मानसिक तनाव। 6 महीने कट गए आपके ट्रेनिंग में, बचे 3.5 साल, फिर 3 साल, 2 साल, टाइम कटता जा रहा, अब 1 साल बची। इसके बाद क्या? ना कोई पेंशन है, ना कोई मेडिकल फैसिलिटी है। भाई बहन तो छोड़ो, माँ बाप तक के लिए मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। ना कोई हाई एल्टीट्यूड अलाउंस है, ना एमएसपी अलाउंस है, ना ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हैं, एनडीए, ना सीडीएस, ना एफकेट, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अग्निपथ ये जो योजना है उसके बारे में उन छात्रों को क्या कहना है जो पिछले 2 साल से प्रशिक्षण ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं भारतीय फौज में, भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए। यहाँ पर पुणे के पास जो लोहगांव इलाका है वहाँ पर ये ट्रेनिंग सेंटर है। अभी आपको क्या जानकारी है? 4 साल की नौकरी, उसके बाद जो अलग अलग सुविधा मिलेगी, जो ढेर सारा पैसा मिलेगा, उसके बारे में। हाँ सर, जो सपना था वो हमारा सब चूर चूर हो गया है, तो आगे क्या करेंगे? और जो तुम 12 लाख रुपए जो दे रहे हो हमें सरकार, तो 12 लाख में आजकल कुछ नहीं होता सर। 12 लाख में हम जो फ्लैट लेने जाते हैं वो भी तो 75 लाख रुपए का एक हॉल मिलता है, तो 12 लाख में हम पूरी जिंदगी हमारी कैसे बिताएंगे सर? घर के लोग क्या कह रहे हैं, माँ बाप क्या कह रहे हैं? सर सब संभ्रम में है, तो घर वाले बोल रहे तुम 2 साल हो रहे ना, तो 2 साल तुमने क्या किया? ये आप क्या कहेंगे? 4 साल ही आप नौकरी कर पाओगे? मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मैं अभी इस 4 साल की सर्विस के लिए इतना मतलब पूरी तरह से सहमत भी नहीं हूँ, क्योंकि अभी देखिए मुझ में जिद है कि मैं 25% में मैं आऊँगा, लेकिन मेरे 75% भाइयों का क्या होगा? आपने जैसे बोला कि वो उसके ऊपर क्या गारंटी है कि ये सरकार हमें देगी ही, और जैसे कि आपने बोला सीआरपीएफ, पुलिस भर्ती वगैरह पर उसमें एक लिमिट रहता है एज का, तो 4 साल के बाद हमारा एज लिमिट निकल जाएगा, तो उसमें भी हमको क्वालिफाई नहीं करेंगे कोई। के लोग क्या बोल रहे हैं? घर के लोगों का यही कहना है कि अगर तुम 12th के बाद अगर तुम झगड़ रहे हो, भर्ती होने के लिए कोशिश कर रहे हो, सिर्फ 4 साल में और भी करना चाहिए, 4 साल के बजाय ज्यादा करना चाहिए। आप क्या कहोगे? आपको क्या लगता है कि ये स्कीम बिल्कुल ही गलत है या जानकारी कम है इसलिए दुविधा है? इसके बारे में जानकारी कम है इसलिए ये कंफर्टेबल नहीं लग रही है न्यूज़। हाँ, कंफ्यूजन है हमें। इसके बारे में अगर प्रॉपर हमें इंफॉर्मेशन मिली जाए तो हम इस पे डिसाइड कर सकते हैं कि हमें ये कैसा लग रहा है। पूरी तरह से गलत तो नहीं हो सकता, मतलब सही भी है, और थोड़ा सा बच्चों का भी मन का विचार करना चाहिए सरकार ने। अभी आपने जैसे बोला कि हम सीआरपीएफ में कर सकते, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर सकते। सर हमने 12th के बाद ही कॉलेज वगैरह छोड़ दिया और आर्मी की तैयारी करना शुरू हो गए हम। देखिए यहाँ पे जो छात्र है उनका कहना है कि संभ्रम है, जानकारी कम है, और अधिक जानकारी इस योजना के बारे में और लिखित आश्वासन कि 4 साल के बाद उन्हें क्या नौकरी मिलेगी इस बारे में भी उन्हें आश्वासन देना चाहिए। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे। आज एक जो सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि जो अग्निवीर आ रहे हैं क्या वो एसएफ ज्वाइन कर सकते हैं? यस, अग्निवीर कैन ज्वाइन एसएफ, लेकिन वो लोग वहाँ से उनके स्पेशल फोर्सेस के लिए वो वहाँ से ही वॉलंटियर कर सकते हैं। उनके अलग टेस्ट होंगे, देन दे कैन गो टू द पैराशूट रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर बैंगलोर में, वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच पीपल नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट आप बोलते हो कि आपको अग्निवीर पे जाना है तो ट्राई एंड बी द 25%, बी द बेस्ट। अगर आप अपनी काम जो आपका देश के लिए सेवा है, अगर आप पूरी इंटेग्रिटी से करते हैं तो आप रिटेन किए जाओगे। इसमें क्या, आई डोंट थिंक सो देयर इज अ प्रॉब्लम। कहता है कि आप कोई भी भर्ती होता है उसको 4 साल का पहले प्रोबेशन पीरियड दिया जाएगा। 4 साल के प्रोबेशन पीरियड के अंदर अगर आप अच्छे हुए तो 25%, मतलब 4 में से 1 आदमी सिलेक्ट हो। नहीं, आपको कोई ये नहीं कह रहा है कि आप सिलेक्ट ही नहीं होंगे, आपको अपॉर्चुनिटी मिल 4 साल आपको दिया जाता है, आपको अपने आप को प्रूव करेगा। आप अगर अच्छे हैं आप प्रूव कीजिए। तो ये अग्निवीर का सोच था, विच मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ, या
मेरे को लगता है कि मे भी 4 में से 1 क्यों, अगर 4 में से 3 अच्छे हैं तो 3 क्यों सिलेक्ट करें हम। मैं समझ सकता हूँ वो जो जवान जाएगा बेचारा, वो 4 साल के अंदर उसको शादी भी हो जाती है उनकी। और जब तक अग्निवीर है उसकी शादी नहीं होती बेचारे की। और लड़की वालों को भी नहीं पता कि यार तो अग्निवीर क्या है, कि इसको नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, वो भी नहीं पता।